ঠিক আছে, আমি যেটা কইতেছিলাম আমাদের ইনইকুয়ালিটির দুনিয়াতে উইথ রেসপেক্ট টু জি, দিস ইনইকুয়ালিটি ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, ঠিক নি ইনইকুয়ালিটি। তো এরকম দুটো যা কোয়েশ্চেন আয় পুরা যেতে যতটুকু কোয়েশ্চেন বা ইউনিট সিলেবাস 50% ইনইকুয়ালিটিজ ইজ অন দিস। আরেকটা নেক্সট যেটা আছে এটাও আজকে আমরা দেখব, নেক্সট ডে আইতেছে, এটা আমাদের বইয়ে নাই বাট কোয়েশ্চেনস আছে এটার উপর। সো উইল গো টু দ্যাট ওয়ান। ফার্স্ট such important inequality is AMGM inequality। আমরা শর্ট ফর্ম এটাকে AMGM inequality কই, বাট এটার মধ্যে HM ও আছে, ঠিক আছে? AMGM inequality প্রথম আমি স্টেটমেন্টটা লিখি, দেন উইল ট্রাই টু প্রুভ দিস ওয়ান, দেন উইল আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াই ইট ইজ, ঠিক আছে? যেমন প্রথম কি কইছে, স্টেটমেন্ট কি A B দুইটা দিয়ে আমি লিখতেছি, দেন ইউ ক্যান এক্সটেন্ড ইট ফর এনি নাম্বার অফ টার্মস অলসো। AB must be positive numbers. Now you understand what is positive numbers, not including 0, okay? So A and B must be a positive number. 0 হলো অসুবিধা নেই, 0 equal to 0 হয়ে যাবে। In that case, what the statement says that AM, then theorem কি বলছে, AM is always greater than equal to GM, which is always greater than equal to HM. This will always hold true, এটাই বলেছে। AM means A plus B by 2, which will be greater than root AB, which will be greater than 2 by 1 by A plus 1 by A. And the inequality and the equality, এখানে যে ইকুয়ালিটি সাইন আছে ওটা কোন সময় হবে? এটা তো দুটোটাই হতে পারে না, গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু। ইকুয়াল টু ইজ এ স্পেশাল কেস, and the equality holds when A equal to B। ওকে, যদি A equal to B হয় তাহলে দুই সাইড ইকুয়াল হবে, अदरवाइज दे विल नॉट बी इक्वल। ठीक है, अभी इसको अगर समझना है तो हम लोग ছোট্ট ইয়ে আছে, this is for 2, so এখন তারা বলবে যে it can be extended for any number of two। इसको कैसे प्रूव कैसे करें? इसको प्रूव करने के लिए we can consider root A minus root B whole square is greater than equal to 0। that we already know, किसी चीज का स्क्वायर तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और रूट है तो यू कैन अंडरस्टैंड इट कैन नॉट बी नेगेटिव। हम इसको A माइनस भी लिख सकते थे, लेकिन उसमें स्क्वायर भी स्क्वायर आ जाता है, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, कोई बात नहीं, इसलिए रूट पे लिखे। अब इसको होल स्क्वायर करोगे तो A प्लस B माइनस 2 रूट AB इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी समझ में आया क्यों पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर में कंसीडर्ड, नेगेटिव तो हो नहीं सकते, इमेजिनरी नंबर आ जाए। तो अभी A प्लस B इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट AB, A plus B by 2 is greater than equal to root AB। So this proves your AM is greater than equal to GM। अभी इसी को अगर उस तरफ लेके जाओगे, रिप्लेसिंग A by 1 by A 1 by B, तुम देख सकते हो। अभी A को अगर 1 by A लिख दो, B को 1 by B लिख दो, then it will go to GM is greater than equal to H। ठीक है, मान लो HM GM के लिए हम कर रहे हैं, A को 1 by A रिप्लेस किया और B को 1 by B, कैपिटल A कैपिटल B मान लो चेंज कर, अब ये कैसे लगेगा, 1 by कैपिटल A प्लस 1 by कैपिटल B डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 by कैपिटल A 1 by कैपिटल B। ये हो जाएगा A प्लस B बाई 2AB इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 by रूट A। या फिर तुम उल्टा कर दो, ऐसे किया तो अब इसको हम उल्टा कर देते हैं, ठीक है ना? उल्टा करने से क्या होगा, 2AB डिवाइडेड बाई A प्लस B इज स्मॉलर देन इक्वल टू रूट A। बोथ साइड आर पॉजिटिव, ये क्या हो गया, HM इज लेस देन इक्वल टू GM। तो मतलब GM यहाँ से आया, AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, AM GM से बड़ा है, GM HM से बड़ा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, AM GM से बड़ा, GM HM से बड़ा। एंड इक्वल टू यू कैन अंडरस्टैंड, जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो इस साइड बैठा के देखो, इट विल बी A, इधर भी A स्क्वायर का रूट A पे बिठाओ, इट विल बी बोथ साइड विल बी सेम इक्वलिटी का। ठीक है,
ওকে, ওইটাই কেন বলেছে দেখো, ইকুয়ালিটি হোল্ডস ইফ এন্ড অনলি a b ইকুয়াল amj inequality of two variable can also be generalized for n variable। लेखे amj inequality पर इसमें hm भी है, इसको भूलना मत, ठीक है ना। कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं hm को, तो वहां से भी अच्छे अच्छे सवाल बन जाते हैं hm को इन्वॉल्व करके, ठीक है। और hm दिखने में इजी हो गया, hm will look like दिख, कभी कभी इस टाइप का नहीं hm होता है, hm will look like this, मतलब 1/a 1/b इस टाइप का कुछ क्वेश्चंस अगर इन्वॉल्व करेगा, देन यू थिंक अरे हाँ एचएम में जा सकते हैं हम, ठीक है ना। वहां से एचएम का फील आना चाहिए, क्योंकि इसको देख के एचएम का फील कभी कभी इस टाइप में नहीं रहता है, क्योंकि 3 में तो ये होगा नहीं, 3 में तो ये बहुत गंदा हो जाएगा। 3 डिवाइड बाय करोगे तो 3 abc बाय ab प्लस bc प्लस c होती, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, 3 4 5 हर जगह में दिख जाएगा। इफ यू सी देन यू कैन विजुअलाइज ये तो एचएम है। सो देन यू कैन एक्सटेंड इट फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स दैट यू कैन अंडरस्टैंड। यहाँ लिखा हुआ है am gm hm सब इनइक्वालिटी, उसको वही लोग ने थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में क्या लिखा है, एन नंबर ऑफ n के लिए दे हैव यूज्ड समेशन साइन। तो समेशन साइन को कैसे लिखा है, नेक्स्ट पेज में जाओ। सो दे हैव रिटन समेशन ऑफ ai's from I is equal to 1 to m divided by n, that is am, is greater than equal to what is gm, nth root of, क्या होगा, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को हम लोग कैसे लिखते हैं, कैपिटल पाई से। जैसे सिग्मा है समेशन के लिए, पाई है प्रोडक्ट के लिए, इसका मतलब a1 into a2 into a3, जैसे इसमें a1 plus a2 plus a3 है, will be greater than equal to hm क्या होगा n। अब इसको तो कैसे लिखा होगा, इसको तो समेशन देखिए 1/a, ठीक है, तो 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1, ঠিক আছে। एग्जांपल 43 देखो, एग्जांपल 43 करो, देखो नहीं डायरेक्ट करो इसको। हाँ
I think this is easy. হচ্ছে 42 43 sorry হয়েছে নি 43 কি বলেছে the arithmetic mean between two positive numbers AB where A is greater than B is twice the geometric mean. So AM is equal to twice of GM. हमें दिखाना है कि A is to B is equal to 1. चलो A plus B by 2 is equal to 2 root AB. ঠিক আছে তো তোমার কি দেখাতে হচ্ছে রেশিও তো রেশিयो আমরা কিভাবে দেখাবো A is to B ना हमको A by B चाहिए तो कहाँ से आएगा A by B एक तो हमको ये दिख रहा है कि रूट AB से अगर हम डिवाइड करेंगे तो A by B पहले तो A के नीचे B आना चाहिए इस टाइप का कुछ आना चाहिए ऐसे ही आ रहा है ऐसे में क्या आ रहा है इट इज रूट A by B प्लस रूट B by A इज इक्वल टू 4 मतलब AB जो A by B अगर उसको हम x ले लेंगे ये कुछ इस टाइप का बन रहा है या फिर x स्क्वायर ले लेते हैं तो और भी अच्छा है तो ये क्या बन रहा है इट इज x प्लस 1 by x इज इक्वल टू 4 A by B को हम x स्क्वायर ले लिया तो x प्लस 1 by x को कन्वर्ट कर लिया हमने तब क्या होगा एल्जेब्रिक में कन्वर्ट करने से इट बिकम्स लाइफ थोड़ा इजी बन जाता है सो इट बिकम्स दिस वन ठीक है अब x क्या हो जाएगा अच्छा अगर हम लोग रूट x करते तो क्या होता क्योंकि इसमें से अभी x को फिर अंडर रूट करना पड़ेगा हमको लगता है कि हमने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया अच्छा ठीक है देखते हैं x इक्वल टू b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4 ऐसे 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 4 प्लस माइनस 12 बाई 3 अंडर तो क्या हो जाएगा 3 कैसे आया 3 कहाँ से आया तो 2 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 2 प्लस माइनस यहाँ से 4 आएगा रूट से ठीक है तो क्योंकि पॉजिटिव बोला है और ए ग्रेटर है हाँ प्लस भी हो सकता है इसमें क्या दिक्कत है लेकिन थोड़ा देखना पड़ेगा अगर x 2 प्लस रूट 3 है तो कितना आ रहा है कौन सा होगा देखो 2 प्लस रूट 3 तुम्हारा क्या दे रहा है रूट 3 मतलब कितना 1.7 ना तो एक बोला है 3.7 और एक बोला है 2 माइनस रूट 3.3 ना हो सकता है इसमें दोनों ही आगे बढ़ते हैं बाद में देखेंगे क्योंकि a ज़्यादा है तो क्योंकि a ज़्यादा है ना a ग्रेटर बोला है ना तो रेशियो 1 से ज़्यादा होना चाहिए तो ये नहीं होगा ठीक है बिकॉज अदरवाइज कुछ भी हो सकता था बिकॉज a इज ग्रेटर देन b तो तुम्हारा x जो है ग्रेटर देन 1 होना चाहिए न्यूमरेटर ज़्यादा डिनोमिनेटर कम तो ये हो गया 2 प्लस रूट 3 तो अपना x आ गया मतलब a बाई बी इज इक्वल टू 2 प्लस अच्छा स्क्वायर करना है मैं तो अंडर रूट का सोच रहा हूँ स्क्वायर तो इजी है कर लेंगे क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 रूट कुछ इस टाइप का है क्या दे हैव रैशनलाइज्ड अरे अपना नहीं आया क्या रैशनलाइज करने से ही आता है क्या जो लोग बोला है हाँ इधे है रैशनलाइज करने ये लोग ने थोड़ा इसको इस टाइप का किया जैसे अभी अभी मान लो आप अपने को ये भी आंसर है अपना ठीक है ना तारा যেটা বসিয়ে দাও অন যদি অপশন মিলাইতে हो তারাটা দেখো তারাটা কি व्हाट दे हैव डन 2 + √3 / 2 - √2 उसको रैशनलाइज करो 2 + √3 से देखो आ गया अपना वाला 2 + √3 होल स्क्वायर ठीक है तो एग्जाम में ये ध्यान देना ठीक है ना हो सकता है कि हमने जो किया वही आया है लेकिन यहाँ थोड़ा वो लोग रिप्रेजेंट किया अलग तरीके से तो थोड़ा देखना उसको रैशनलाइज करो या फिर अपने वाला भी ऐसा सोचो अच्छा 2 + √3 है और एक 2 + √3 है अपने को मालूम है मतलब नीचे 1 हो गया होगा तो इसलिए इसको हम लोग 2 - √3 के साथ जब रखेंगे हाँ तब ये 1 देगा क्योंकि 1 के बदले में हम ये लिख सकते हैं सो देन इट विल कम अप टू दैट ठीक है इजी था जब वो यहाँ पर भी जो किया वो भी इजी है अलग अलग किया कॉम्पेरेंडो डिविडेंडो किया इस तरफ लाके सो दैट आल्सो कैन बी डन ठीक है ना a + b + 2 √ab that is this is also nice way हर जगह में जितना भी मेथड से यू शुड ऑलवेज सी तुम्हें कौन सा क्लिक करे यू नेवर नो ठीक है ना यू शुड बी ऑलवेज कंफर्टेबल विद ऑल द ऑप्शंस नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट जो चीज है AMGM वाला बहुत सारे सवाल दिया है यहाँ पर दे हैव गिवन अ लॉट ऑफ क्वेश्चन इट्स गुड और
AMGM में एक खास चीज मैंने बोलना भूल गया, जैसे अभी मैं बोलूंगा इसमें ABC ग्रेटर देन 0 है और तुमको बोला है फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ AQ प्लस B स्क्वायर प्लस C। इसका ग्रेटेस्ट निकालना होगा, मैक्सिमम। थोड़ा सा वापस आते हैं हम लोग AMGM में, और एक अच्छा चीज हम लोग ने मिस कर दिया, लेट्स डिस्कस दिस। कहाँ पर थे हम लोग? ध्यान रखना, जैसे मान लो AMGM वाला पोर्शन ही मैं ले रहा हूँ। व्हाट वाज AMGM? A प्लस B बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए। ये चीज को देखो, इसमें से पहले तो ये जैसे हम किसी का मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू अगर जानना है हमको, जैसे इसका मैक्सिमम, इसका वैल्यू अपने को पता है इससे ज्यादा होगा तो इसका मिनिमम वैल्यू लग रहा है ये, और इसका इससे कम होगा तो मैक्सिमम वैल्यू ये लग रहा है। तो ठीक है, लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए आइदर दिस साइड या दिस साइड कांस्टेंट होना पड़ेगा, मतलब ए बी नहीं हो सकता। जैसे मैं अगर बोल दिया a प्लस बी इक्वल टू 5, ठीक है, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी, तब तुम इसमें लगाओ 5/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी और ए बी ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 25/2। तो ए बी का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया? 25। सेम टाइप का अगर हम बोल देंगे कि ए बी इक्वल टू 9 है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। अभी ए प्लस वैल्यू का मिनिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी? दिस इज द मैक्स वैल्यू, इसका मैक्स वैल्यू ए बी था, और ए प्लस बी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? अभी फिर से लगाया मैंने रूट 9, तो ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो गया? 6। तो हम मिनिमम मैक्सिमम निकाल सकते हैं इसको, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, लेकिन व्हाट इज द कंडीशन? इसके लिए होना चाहिए आइदर लेफ्ट साइड या राइट साइड, कोई एक वैल्यू कांस्टेंट आना चाहिए। स्टार्टिंग में शायद ट्रिगोनोमेट्री वाला में हम लोग फर्स्ट क्लास में भी हम लोग डिस्कस किया था, ठीक है शायद या इस वाला तुम्हें हे नछिलो ना ऑनलाइन आछिलो ऑनलाइन तुम्हें देखो আমরা ম্যাটেরিয়ালটা খুললো ट्रिगोनोमेट्री फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट पेज में ये है, तब भी हमने डिस्कस किया था ये। अरे शॉर्ट मारे हल्का हल्का, ठीक है, तब भी हम लोग डिस्कस किया था, ठीक, AMGM इनइक्वालिटी को, कि कोई भी एक साइड फिक्स्ड होना पड़ेगा, अदरवाइज जैसे मान लो वेरिएबल अगर है तो तुम कह नहीं सकते, ठीक है ना, इफ इट इज वेरिएबल देन यू कैन नॉट से। तो इसको क्लियर रखना, और इसको हम लोग सम का मिनिमम के लिए यूज करते हैं, सम का मिनिमम के लिए, और प्रोडक्ट का मैक्सिमम के लिए यूज कर सकते हैं। मैक्स ऑफ प्रोडक्ट ऐसे भी याद रखना, सम और प्रोडक्ट में कौन बड़ा होता है? प्रोडक्ट बड़ा, प्रोडक्ट को अनेक बेड़े যেতে পারে, इसलिए प्रोडक्ट का मैक्सिमम, सम का मिनिमम। कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, सम का मिनिमम था ना मैक्सिमम, ऐसे याद रखना, अरे प्रोडक्ट तो बहुत, प्रोडक्ट का मैक्सिमम होता है और सम का AMGM लगाने से पहले अरे ये होगा कि नहीं होगा, ये फिर इसका नहीं होगा, दूसरा कुछ लगेगा, और एक और भी इनइक्वालिटीज है, जरूरी नहीं यही लगेगी, और थोड़ा सा ऐसा फील आना चाहिए अपने को, ठीक है। ओके, ये अगर हो गया अपना, तो हम लोग उस प्रॉब्लम को नाउ वी कैन टेक, लिखना है इसको हो जाए। अभी अगर इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है देखिए, तो क्लासिक AMGM लगेगा, एकदम डायरेक्टली रेडी है, क्योंकि ग्रेटर ये पॉजिटिव है, ये भी एक हिंट है, ABC नंबर्स शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि बिना उसका हम AMGM नहीं लगा सकते, और प्रोडक्ट का उसने मैक्सिमम बोला है, और भी हिंट है, सम उसने डायरेक्ट दे दिया, इस टाइप का कुछ। लेकिन प्रोडक्ट में कितना A है? 3 A है, 3 B है और 4 C है, लेकिन इसमें तो मेरा एक ही है, हम लोग इसको थोड़ा ट्यूनिंग कर लेते हैं, 3 A बनाते हैं हम लोग। तो 3 A कैसे बनेंगे? 3 A कितना भी चाहिए, अभी तुम जितना बोलोगे उतना बना सकते हो। 2 B, कितना C चाहिए? ये इज इक्वल टू 5 दिया। अब ऐसे सोचो कि मेरे पास इतना नंबर है, कितना नंबर है मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9
मेरे पास 9 नंबर है, तो 9 नंबर में AMGM में लगा रहा। What I am doing? I am doing AMGM for 9 numbers. Sum of 9 numbers, इस सबका sum कितना है 5 divided by 9 नंबर, ठीक है ना। AM is greater than equal to GM। GM क्या होगा, कितना नंबर है 9, तो 9th रूट ऑफ सारे नंबर का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, A cube by 27 इंटू B स्क्वायर बाई 4 इंटू C4 बाई 4 का क्यूब कितना है, 4 का टू द पावर 4, 4 এর কিউব হয়েছে 64, 256। कुछ इस टाइप का बनेगा। तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब किससे छोटा होगा, इसका nth पावर 9th पावर, इसका टू द पावर 9 इंटू 27 का स्क्वायर रूट है 9th रूट है, तो 9th हमने उधर ले लिया, तो 27 इंटू 4 इंटू 256, ये है अपना ए क्यूब बी स्क्वायर सी। इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, तो दिस इज इट्स मिनिमम वैल्यू। अगर देखो इसमें ऐसे लिखा है, कैसे लिखा है ये तो ऑप्शन से अपने को पता चलेगा, बट कुछ इस टाइप का ये लोग ने सिंप्लीफाई किया। यहाँ से कितना 5 है, कितना 9 है, सबको गिन के तो 2 टू द पावर 10 लिख दिया, 5 टू द पावर 9, 3 टू द पावर 15, कितना 3 है, कितना वो है, वो सब देखा। ठीक है, जैसे 3 तो अपने को दिख रहा है, यहाँ 3 स्क्वायर ऊपर में 9 है, तो 3 स्क्वायर ऊपर ना 9 2 18, 8 तो 10 3 ना 3 देखो तो 13 15 15 3 नीचे 15 3, तो दिख रहा है। ऐसे करके हम लोग ने निकाला। और इसमें एक भी कोई एक सवाल ये भी था, कब होगा ये ग्रेटेस्ट, ये भी वो लोग निकाल के दिया। एंड व्हेन द ग्रेटेस्ट विल ऑकर, ये ग्रेटेस्ट होगा कब, अपने को क्या पता कब होगा, जब तीनों इक्वल, जब सब इक्वल होता है तो क्या होता है, a/3 शुड बी इक्वल टू a/3 शुड बी इक्वल टू a/3 शुड बी इक्वल टू b/2 शुड बी इक्वल टू b/2 शुड बी इक्वल टू c/4। समझ में आ रहा है क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? तो सर इतना आप क्यों लिख रहे हैं, दैट शुड बी ऑल इक्वल, ठीक है ना। इसको k मान लो, तो a हो गया अपना 3k, b हो गया 2k और c हो गया 4k। तो इन सबका सम कितना दिया हुआ था 5, तो वहाँ से k निकल जाएगा, वहाँ से ab से निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि सारे सेम, जब सेम होगा, क्योंकि these are the 9 numbers, so they all should be same. Once they are equal, then you can find this, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, इसमें और भी एक सवाल था। अच्छा, इसको दूसरा तरीका, ये तो सेकंड प्रॉब्लम है। फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 5 - x होल स्क्वायर x - 2 टू द पावर 5 गिवन x इज बिटवीन 2 to 5। তুলবে এটা একটা জিনিস কি হচ্ছে, x এর একটা ভ্যালু দিয়েছে 2 to 5 এর মাঝে, ये किस लिए दिया है, देखो x अगर 2 से 5 से अंदर में रहेगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, तो बहुत पॉजिटिव नंबर है। और अपने को इनका प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। अपने को क्या निकालना था, इनका प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू। तो प्रोडक्ट का मैक्सिमम चाहिए तो AMJ आने का चांसेस है, लेकिन उसके लिए सम चाहिए होगा। दोनों को अगर सम करेंगे तो सम में क्या आ जा रहा है, दोनों का सम कितना आ जा रहा है, एक्स कैंसिल आउट हो जा रहा है, सम कितना आ रहा है, इन दोनों को सम किया तो 3 आ जा रहा है। तो सम इज गिवन, बट सम इज गिवन इन डिफरेंट वे। ये वाला प्लस x - 2 इज इक्वल टू 3, लेकिन अपना प्रोडक्ट में ये कितना है, 2 है, तो अपने को इसको 2 बनाना होगा। 5 - x/2 प्लस 5 - अभी धीरे धीरे तुम ये सब लिखना छोड़ दोगे, ठीक है ना। जो बना रहे हो ना, धीरे धीरे तुम ही नहीं बनाओगे। x - 2/3 प्लस x - 2/3 प्लस x - 2, अच्छा ये 5 बार लिखना है, ठीक है ना, सॉरी 5 है। अभी तुम कर सकते हो, प्लीज कंटिन्यू, ठीक है, कंप्लीट करो इसको। एक चीज मेरे को कुछ चीज बताओ, देन विल लेट्स एक बार हम लोग ग्राउंड वर्क कर लेते हैं, देन विल फाउंडेशन कर लेते हैं, देन विल डील करते हैं। গরম লাগতেছে না, আমি খায়া গরম লাগতেছে, আমার খায়া হওয়াতে গরম লাগতেছে নাকি, আসলে গরম আছে, শুরু হয় না, একটু পরে হবে না। তোমরা তো বসে রয়েছে, আমি তো দৌড়াচ্ছি, এর মাঝখানে এই আসছে মেসেজ, ও আসছে, ওদেরকে আবার রিপ্লাই দিচ্ছি। আমার মাথাটা একটু ঠান্ডা থাকলে ভালো হবে। আচ্ছা, প্রথম আমাকে
बिकॉज আমি নাম লেখার আগে নামটা লিখতে হয় না, सीएस इनइक्वालिटी बोलते हैं हम लोग इसको। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोबेबली इसके बाद तो और कुछ है नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन इनइक्वालिटी আছে বাট এটা ফাংশনে আইবো, बट मोर और लेस ये दो तीन इनइक्वालिटी है अपना। सीएस इनइक्वालिटी का फुल फॉर्म है कॉची शेवार्ट्स इनइक्वालिटी, कॉची शेवार्ट्स इनइक्वालिटी, बाहर का साइंटिस्ट मैथमेटिशियन है। या फिर इसका शॉर्ट वर्जन इसको हम लोग डॉट इनइक्वालिटी भी कहते हैं। डॉट कौन सा है? डॉट है अपना वेक्टर में जो डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे हम लोग, ये डॉट भी पढ़े थे ना, ए बी cos थीटा आई डॉट I1 जे डॉट J1 के डॉट K1 এগুলো বসো তো তোমরা। अब देखो हम लोग लिख सकता है a इज लेस देन इक्वल टू a, कोई भी नंबर एक a उठा लिया, ঠিক আছে, এটা তো আমরা জানি। আচ্ছা এবার a এর সাথে যদি কোনো ফ্র্যাকশন মাল্টিপ্লাই করি, then also a is less than a। fraction means what I am saying, fraction means anything in between 0 to 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, इंक्लूडिंग 0 एंड 1, ठीक है ना। तो कुछ भी चीज हमने ऐसा मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसे ही होगा। अच्छा अगर मैंने यहाँ तक देखो धीरे धीरे कैसे बिल्डअप हो रहा है, देखो जैसे थीटा को मैंने अगर 0 से 90 लिया, थीटा को मैंने 0 से 90 लिया, तो फिर cos थीटा क्या होगा? 0 से 1, मतलब वही फ्रैक्शन की जगह में हम cos थीटा डाल सकते हैं या फिर sin थीटा। 0 से 90 क्लास 10 में जितना भी था तुम्हारा cos का वैल्यू 0 से 1 तक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a cos थीटा इज लेस देन इक्वल टू a। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ए बी cos थीटा इज लेस देन इक्वल टू a इंटू बी, बी भी और एक नंबर ले लिया। सीएस इनइक्वालिटी की और भी मजेदार एक कहानी क्या है, व्हाट मेक्स इट मोर ब्यूटीफुल इज दैट इट इज नॉट मैंडेटरी दैट ए बी बोथ शुड बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होने का कोई चांस ही नहीं, जरूरी नहीं है। सो इट इज नॉट मैंडेटरी दैट बोथ शुड बी पॉजिटिव, ठीक है, दोनों पॉजिटिव का जरूरत नहीं। जो मेरा रेस्ट्रिक्शंस था एएमजीएम इनइक्वालिटी में वो थोड़ा मुश्किल हो गया था, अभी यहाँ दिस इज नॉट ए मुश्किल। ओके, अब इसको देख के थोड़ा डॉट याद आ रहा है, व्हाट इज ए बी cos थीटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी is less than equal to a means vector a का मैग्नीट्यूड, b means vector b का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ठीक है इतना तक। ओके, वेक्टर a को मैंने मान लिया a1 i कैप प्लस क्या माने a2 j कैप, वेक्टर b को ले लिया b1 i कैप प्लस b2 j कैप। फिलहाल मैं के कैप नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आई थिंक तुम लोग ने फिजिक्स में किया होगा, अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं है जो फिजिक्स में नहीं किया ये सब इसे, इसलिए इसको डॉट इनइक्वालिटी कहते हैं। वरना व्हाट इज ए डॉट बी, इनको डॉट करोगे तो क्या होगा बोलो तो, इधर डॉट कर लिया आज में a1 प्लस a1 b1 प्लस a2 b2, ये वाला is less than equal to এটা কি মড এ কি ম্যাগনিটিউড অফ ভেক্টর এ, এর ম্যাগনিটিউড কত এটা জোরে কো, আস্তে আস্তে কেটে মিন করে, ভেক্টরের ম্যাগনিটিউড, এই ভেক্টরের ম্যাগনিটিউডটা কি হবে, ভেক্টরের মধ্যে ডাইরেকশনও আছে ম্যাগনিটিউডও আছে না, এতক্ষণ লাগে কত এটা বার হইতে, হ্যাঁ কি রে আমি তো হচ্ছে অঙ্কেই আমি বুঝি বেশি চাপ দিতেছি, ফিজিক্সও কি বেশি চাপ হয়ে যেতেছি নি, ঠিক আছে, আমি না দুষ্ট মনে করলাম যে বাকিরা আনলে ভালো। তাহলে কি হবে a1 b1 প্লাস a2 b2 হোল স্কয়ার ইজ লেস দেন ইকুয়াল টু a1 স্কয়ার প্লাস a2 স্কয়ার। अरे तो हुआ एग्जैक्टली सीएस डॉट इनइक्वालिटी यही बोला है, a1 b1 प्लस a2 b2 इसका स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इन a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर।
एग्जैक्टली यही बोला है। और इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, वेरी ब्यूटीफुल एप्लीकेशन है। कुछ कुछ चीज़ें तो इतना जल्दी खत्म हो जाएगा इससे, तुम देख के बोलोगे अरे ये तो इतना शॉर्टकट हो गया, सब निकाल। यहाँ पर वो लोग यूज किया इसको, लेकिन छुपा के किया है, अगर तुम्हें ना दिखे दुष्ट तो है, लेकिन हम लोग को तो दिख गया। ঠিক আছে, দেখলাম আমরা कितना तक हो गया, 2 तक तो इजी था। अभी आपने को ये भी समझना है कि इक्वलिटी कब होल्ड करता है, ये तो हमने समझ गया। और यहाँ पर मजेदार चीज क्या है, दिस a1 b1 a2 b2 दे नीड नॉट टू बी पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नेगेटिव कोई एनी नंबर, दे कैन बी एनी रियल नंबर, क्योंकि वेक्टर में जो ये सब है, ये सब कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो इसका मजेदार चीज क्या होता है, देखो हमने इसको स्प्लिट कर दिया, कुछ स्टेप का लग रहा है ना कि a1 को अलग कर दिया, a1 a2 अलग कर दिया, b1 b2 अलग कर दिया, कितना मजा लग रहा है। कभी ऐसा लगा कि उस एक्सप्रेशन में अगर हम अलग कर देंगे इट विल गिव यू गुड ब्यूटीफुल थिंग्स। उसमें भी क्या होगा, किसी भी एक साइड कांस्टेंट आना पड़ेगा, अदरवाइज वेरिएबल रख के जैसे एमजी में भी इसमें भी सेम है, कोई एक साइड कांस्टेंट आने से देन यू कैन सी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अभी इसमें अगर मैं 3 लगा दूंगा तो अच्छा इसका इक्वल टू कहाँ होल्ड करता है, एक चीज हमको ये भी समझना है, इसलिए वो पेड होने से इजी होता है, कुछ भी चीज मिस नहीं होता। मैं गया था ऊपर उसको लेके आने के लिए, इसके साथ भूल गया। ठीक है, आई डोंट थिंक मिस होगा, थोड़ा सोच के कर। इक्वल टू का होल्ड करेगा, इक्वल टू होल्ड करेगा जब a1 by a2 is equal to b1 by b2 होगा, जिसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इक्वल टू कब होता है, कम टू बेसिक, एकदम फर्स्ट जगह यहाँ पर इक्वल टू कब होगा, f का वैल्यू क्या होने से इक्वल टू होगा 1, गुड, f इक्वल टू, यहाँ पर थीटा क्या होने से 1 होगा 0, वेरी गुड। दो वेक्टर में एंगल 0, थीटा मतलब क्या है, एंगल बिटवीन दीस टू, दोनों वेक्टर में एंगल 0 मतलब क्या है, दोनों पैरेलल বা कोलिनियर एमन टाइप पैरेलल, वही ना पैरेलल। तो दो वेक्टर पैरेलल में क्या होता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज ए समथिंग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी। ए को ही खींच के लंबा कर दिया या फिर नाटा कर दिया, सेम ही है, दोनों डायरेक्शन तो सेम ही है, तो क्या होगा, सिर्फ 2 या 3 से मल्टीप्लाई करें, बड़ा होगा छोटा होगा, तो वेक्टर ए बाई बी क्या होगा, एम होगा। तो मतलब a बाई बी एम होगा, मतलब a1 बाई a बाई बी एम होने का मतलब क्या होगा, a1 बाई a2 शुड बी इक्वल टू b1 बाई b2, यही होता है ना। स्ट्रेट लाइन से भी तुम समझ सकते हो, क्लास 10 का भी स्ट्रेट लाइन में चलेगा, ठीक है ना, पैरेलल लाइन से a1 बाई a2 b1 सब मैच हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली जब 12 कंप्लीट होगा या फिर आधा में तुमको दिख जाएगा, अरे ये तो इसके साथ पूरा देखना, मैथ से एक साथ रिलेट कर दूंगा मैं, सो देन इट विल बी इजी है, तुमको लगेगा वेक्टर ही स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, सीएस है, सीएस है, सब एक है, पूरा दुनिया ही एक होगी। हाँ, अरे सब तो इंटरकनेक्टेड है, ऐसा कुछ नहीं है कि अलजेब्रा अलग है, वो अलग है, वो अलग है। अच्छा, इसमें और अच्छी तरह जाएंगे, क्योंकि वेक्टर में जब जाएंगे देन इट दिस कॉन्सेप्ट विल मेक यू मोर क्लियर, इसके ऊपर वेक्टर के अच्छे सवाल बनते हैं a1 b2 अपना मैथ्स में, और मैथ्स का वेक्टर इज मच हायर देन योर फिजिक्स वेक्टर, ठीक ना, उससे बहुत ऊपर है, उससे क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, फिजिक्स का वेक्टर भी इजीली हो जाता है। फिजिक्स का वेक्टर का जो एडवांस का क्वेश्चन होता है, मैथ्स का वेक्टर का मेंस का भी क्वेश्चन नहीं होता, तो तुम अगर मेंस का होता है, मेंस का नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, तो मैथ्स का वेक्टर अगर कर लोगे तो वहाँ फिजिक्स का भी एक अच्छा जाएगा तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन हालांकि बहुत कम आता है, एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, समझ में आया। तो इसलिए यहाँ पर हुआ। अभी इसी को हम अगर 3 के लिए लिखना चाहते हैं तो हो जाएगा, बोले सर हाँ 3 के लिए आपने तो के नहीं लिखा था, a1 a2 a3 b1 b2 b3 के बन जाता, तो a1 b1 a2 b2 तो a3 b3 को लिख देते आप, यहाँ a1 a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, यहाँ b1 b2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, में समझ गया। अभी अगर 4-5 नंबर होगा तो हम क्या 5 डायमेंशनल वेक्टर 6 डायमेंशनल या फिर n होगा तो n डायमेंशनल वेक्टर लेंगे, नहीं, कुछ और सोचते हैं, कुछ और सोचने के लिए
ये प्रूफ हो गया, तो इसको लेके हमने 3 भी प्रूफ कर सकता हूँ, लेकिन 4, 5, 6 में प्रूफ करना चाहता हूँ। और प्रूफ इसका इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें फील आएगा, अच्छे इसको अप्लाई करना भी आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने कुछ इस टाइप का ले लिया, a1x माइनस b1 का होल स्क्वायर प्लस a2x प्लस b2 माइनस b2 का होल स्क्वायर प्लस ऐसे n नंबर से है, लास्ट वाला है an, और तुम जितना चाहो अभी उतना तक जा सकते हो। ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, होगा ही होगा। लेकिन मुश्किल क्या है बेटा, n अगर मैं लूंगा तो उसको संभालने में थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हो जाएगा, यू कैन अंडरस्टैंड। अभी मान लो इसको मैंने खोला, एक्सपांड किया, थोड़ा सा कैसे एक्सपेंशन है, दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। धीरे धीरे तुमको यू हैव टू यूज टू, क्योंकि बाइनोमियल आने वाला है, ठीक है ना, यू शुड गेट टू यूज टू दिस, कैसे एग्जाम में ये सब एक्सपांड होगा, जब चाहे मैं कैसे कर सकता। थोड़ा हम लोग केयरफुल होता है, कभी चीज़ कैसे क्लास 10 जैसे नहीं ऐसे लिख दिया पूरा, ठीक है ना, थोड़ा हम लोग केयरफुल होता है। देखो इसको खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर एक टर्म बनेगा, इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी नहीं है, मोबाइल में नहीं है ये एक्स स्क्वायर, हाँ नाइटर मध्य नहीं है, एक्स स्क्वायर सबगुलोर मध्य আছে, ठीक तो सारे एक्स स्क्वायर को अगर मैंने कॉमन ले लिया, हालांकि इसका यूज किया है उन्होंने इसमें, लेकिन तो घुराया को सर डायरेक्टली दे हैव नॉट मेंशन। आई थिंक और एक बुक आएगा जब उन लोग का सिलेबस खत्म होता है, उसमें शायद आई थिंक सीएस इनइक्वालिटी को स्पेशली मेंशन करना चाहिए, डॉट 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 an स्क्वायर इज इनटू एक्स स्क्वायर है, একটা যে কোনো একটা নাম্বার নিলাম, একটা ইকুয়েশন নিলাম, নিতেই পারি, सबगुलो स्क्वायर ऐड করছে तो इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये सच लिखा है ना मैंने, क्या मैंने कुछ पाप किया इसमें, হবে না, এটা সত্য কথা লিখেছি তো, আমি ভালো মানুষ, এটা সত্য তো, হ্যাঁ সত্য তো, আসলে তুমি ভালো না, এটা সত্য তো। तो मैंने एक सच बात लिखा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी लिख सकते हैं हम, पागल आदमी हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सच है कि नहीं वो देखो, ঠিক না, এটি তো প্রুফটি এমনই হয়েছে, এও মাথা জন্য নিউটন বেরিয়েছিল, এটা ফল প্রসেস সাইরিস ম্যাচে ফল খেলে বেঁচে এটা দিচ্ছে গ্রেভিটি প্রুফ করে লিখছে, কিন্তু এটা তো এমনই পাগলা ওটাকে তোই করবো স্যার এটা কেমনে লিখছে, আরে কেন এমনি অপশন সব বেরিয়ে যাচ্ছে, এবার জানি ওই যখন দেখতেছি যে সব কইরা দেখতেছি ভালো কনক্লুশন है করতেছি, ठीक है, कनेक्ट हो जा रहा है नेचर के साथ। अभी देखो, अभी अगर 2a, यहाँ पर भी एक 2ab, यहाँ पर भी एक 2ab, यहाँ पर भी एक 2ab बनेगा, और ये क्या बनेगा, इस टाइप का बनेगा, बोलो तो माइनस, बोलो सब में x रहेगा तो 2 इंटू एक्स कॉमन ले सकते हैं, यहाँ क्या बनेगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस डॉट 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 an bn, और एक क्लास में क्या बनेगा, b1, तुमने क्वाड्रेटिक दोनों क्वेश्चन है ना, है करना चाहिए था, अभी इसमें लगेगा, इसके बाद नेक्स्ट क्वाड्रेटिक लेंगे, याद रखना, क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स तो अच्छा है ना, कॉम्प्यूटेशन ठीक है, क्वाड्रेटिक करना चाहिए। ये क्या बना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, ठीक है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमेशा पॉजिटिव है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली x का स्क्वायर है, माने y इक्वल टू समथिंग x स्क्वायर लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज ए पैराबोला, बिकॉज y इक्वल टू समथिंग x स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, हम इसको y इक्वल टू अगर लिख दिया, y इक्वल टू एक्सप्रेशन तो पैराबोला है, हमेशा पैराबोला होता है क्वाड्रेटिक। पैराबोला में स्माइली होता है, रोने वाला रुदाली, हंसने वाला स्माइली। ये क्या है, ये डिपेंड करता है x का कोफिशिएंट के ऊपर, जब तो हम लोग करेंगे क्वाड्रेटिक ध्यान देखना, ये कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव मतलब स्माइली, ठीक है, तो स्माइली बनेगा। ये अगर रोने वाला है नेगेटिव है तो रुदाली बनेगा, ठीक है, तो अगर स्माइली बन रहा है, ठीक है, हम लोग इसको स्माइली बनाते हैं, कहाँ समय नहीं आज के देरी करिस ना, तो स्माइली बन रहा है, वेरी गुड। अब स्माइली ऐसे भी बन सकता है, स्माइली ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, अपने को कौन सा चाहिए, अपने को ये नहीं चाहिए क्योंकि इसमें नेगेटिव आ जाएगा,
अपने को पॉजिटिव चाहिए, तो स्माइली क्या चाहिए, ऊपर चाहिए। हाँ 0 हो सकता है, मतलब टच करके वाला जाना चाहिए। हाँ ये हो सकता है, ये कम नीचे आते आते इट कैन कम टू दिस पोजीशन, इट कैन टच बट इट कैन नॉट क्रॉस। इसका मतलब क्या, इसका रूट आइदर 1 होगा नहीं तो नहीं होगा। मतलब डी का जो वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0 होगा। और इक्वल टू कब होगा, जब वहाँ इक्वल टू चाहिए होगा। जब यहाँ 0 चाहिए होगा अपने को इक्वल टू, तब इक्वल टू। जब ग्रेटर चाहिए तभी ऊपर चला जाए, तो लेस देन। समझ में आ रहा है ना। तो अपना डी क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका डी क्या है, ध्यान दो डी को, डी को ध्यान देखने से देखना प्रूफ हो गया। इसका डी में ध्यान दो, मैं लिखूँ ना डायरेक्टली लिखूँ, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी मतलब क्या है, ये इसका स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो मतलब बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4ac। तो इधर लेके चला गया, इज लेस देन इक्वल टू 4, ए मतलब यही है। दिख रहा है कि नहीं, देखे तो नहीं, तुम्हें देख सुने बाबा, हाँ बाबा ना বেশি চাপ হয়ে যেতেছে। ইজ ইট এ চাপ और इज इट गुड, चाप लगतेছে ना गुड लगतेছে। हो गया अपना सीएस इनइक्वालिटी प्रूफ हो गया। अच्छा सर प्रूफ तो हुआ सर, इक्वल टू वाला तो प्रूफ नहीं हुआ, आपने आधा प्रूफ करके छोड़ा, इक्वल टू वाला कहाँ से हुआ, समझो हमको। इक्वल टू में आपने इक्वल टू में बोला था ये होगा, तो मतलब इक्वल टू में यहाँ पर भी यही होगा, a1 by a2 should be equal to b1 by b2 should be equal to an by bn। ये कहाँ प्रूफ हुआ सर, ये तो नहीं हुआ। इक्वल टू वाला आधा करने से थोड़ी होगा, अपने को पूरा चाहिए। इक्वल टू तो नहीं हुआ, हाँ चलो इक्वल टू वाला करते हैं। अच्छा अगर ये इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान दो, अगर जो मेरा ओरिजिनल एक्सप्रेशन है ये अगर इक्वल टू चाहते हो तो हमने क्या बताया था, अभी तक बताया होगा, क्या होगा, এটা ইকুয়াল টু এদের কি হতে লাগবে, হ্যাঁ হ্যাঁ না মানে हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन বা যে কোনো इक्वेशन এরকম ভাবে परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये कभी नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव नंबर ऐड करके 0 कैसे होगा, until and unless each and everyone is 0, हमने डिस्कस किया था इसको। until and unless each and everyone is 0, इसका मतलब क्या है, x equal to b1 by a1, उधर से करोगे x equal to b2 by a2, उधर से करोगे x equal to b3 by a3। अरे ये तो प्रूफ हो गया। इक्वल टू कब होगा, जब ये इक्वल टू होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हो गया, सब प्रूफ हो गया, जितना चाहिए था सीएस इनइक्वालिटी हमने पूरा निचोड़ के सीएस इनइक्वालिटी खा लिया, हजम कर दिया सीएस इनइक्वालिटी। अभी देखो इसको करने के लिए कि हम लोग वहां से एक आइडिया पता चलेगा, क्योंकि एबीसी एनी रियल नंबर है तो वो तो नहीं लग सकता है, हम लोग ने जब पढ़ा है एएमजीएम वाला नहीं लगेगा, तो सीएस का एक हिंट बन सकता है। और एक यहाँ बन सकता है, देखो इसको स्प्लिट कर सकते हैं हम लोग दो अलग अलग, इसके साथ इसका, इसके साथ ये। और एक हिंट है, ये देखो एक क्वाड्रेटिक फील्ड दे रहा है समथिंग स्क्वायर, और ये देखो मतलब इट्स लीनियर, इसको जब काम करोगे देखना क्वाड से लीनियर फॉर्मेट कुछ इस टाइप का बनता है, क्वाड्रेटिक कॉम्बिनेशन और लीनियर कॉम्बिनेशंस का, ठीक है ना। जैसे इसका पूरा का होल स्क्वायर हो गया, और ये लीनियर दो प्रोडक्ट का इनटू है, लीनियर नहीं एग्जैक्टली, इसमें भी स्क्वायर है, लेकिन फिर भी एक आइडिया पता चलता है कि क्वाड टू लीनियर, लीनियर टू क्वाड, इस टाइप का भी फील्ड बन सकता है, ठीक है ना। ठीक है, जैसे ये लीनियर है, स्क्वायर छोड़ दो, स्क्वायर तो हमने वो तो वैल्यू रहेगा कुछ, उसका स्क्वायर कर लेंगे, लेकिन यहाँ तो लीनियर क्वाड्रेटिक बन जा रहा होगा एग्जैक्टली। तो इस टाइप का कुछ कॉम्बिनेशन हम यहाँ देख सकते हैं, वहाँ से अपने को हिंट आना चाहिए। अपना ये पेज खत्म हो गया सीएस में, वेरी गुड, हम लोग आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे के लिए हम लोग इसमें जैसे एक क्वेश्चन ये देखो, कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर वो वाला करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले कुछ कर लेते हैं। जैसे एफ और जी दो फंक्शन है, मान लो रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल फंक्शन है, और अपने को दिया हुआ है एफ स्क्वायर एक्स मतलब एफ एक्स होल स्क्वायर जी एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना, इस टाइप का। इसका लेस देन इक्वल टू 100 दिया हुआ है, और तुमको बोला है कि यू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3fx प्लस 4gx, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने बोला, मॉड ऑफ दिस वन, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है। तो हमको पहले तो रियल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो एएमजीएम वाला तो चक्कर होगा नहीं, और इनइक्वालिटी है मतलब कुछ ना कुछ इनइक्वालिटी लगेगा। तो इसमें क्या है, देखो एक क्वाड है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, देखो यहाँ एक लीनियर है, यहाँ अपने को लीनियर कॉम्बिनेशन है, और यहाँ इसका स्क्वायर है।
तो अपने को देखो यहाँ से क्या लग रहा है, इसका ये इंटू काश हम इसको खोल पाए, 3 अलग 4 अलग और एफ और जी को एक साथ। कौन खोल देगा ये? एफ और जी को एक साथ कर देगा, 3 और 4 को एक साथ, सी एस इनइक्वालिटी। तो इसमें हम लोग 3f प्लस 4g इसका स्क्वायर क्या था, सी एस इनइक्वालिटी इज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और ये एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर कर दिया अलग, और एफ जी का एक आइडिया वो लोग ने दे दिया इस सेट का। और ये बेसिकली नथिंग बट ए मॉड है, मॉड का भी स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, कोई बात नहीं, क्योंकि होल स्क्वायर है तो मॉड का स्क्वायर भी वही रहेगा, इसका स्क्वायर भी इज लेस देन इक्वल टू, ये 25 है और ये वाला कुछ है। अभी देखो आपने को क्या करना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू जानना है। इसको अगर मैक्सिमम करना है, इस सेट को अगर बढ़ाना है तो इसको भी बढ़ाना होगा, इसका सबसे बड़ा वैल्यू से ये छोटा होगा। ये सेट का क्या मानो, इट इज लेस देन समथिंग, तो जिससे कम है उसको ही बड़ा कर दो, तो उससे वही उसका हाईएस्ट वैल्यू है, क्योंकि उससे छोटा उतना तो वो पहुंच सकता है उसको। तो इसका हाईएस्ट वैल्यू कितना है, 100 दिया हुआ। तो अभी अपने को इसका तो रूट हटाना है, क्या बोलते हैं, स्क्वायर हटाना है, तो लेस देन इक्वल टू 50, अपना आंसर हो गया। अभी देखो ये एक एंजल फॉर्म है, कोरोलरी बोलते हैं इसको, इट इज द एंजल फॉर्म ऑफ सी एस इनइक्वालिटी, काफी स्टैंडर्ड एंजल बोल के सब लोग भूतिया फॉर्म। ये लिनियर इनइक्वालिटी सी एस इनइक्वालिटी है, लेकिन इसको थोड़ा छुपा के लिखते हैं, मतलब ऐसा टाइप का लिखते हैं तो देख के थोड़ा समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, ठीक है। पहले मैं फॉर्म लिखता हूँ, देन आई विल प्रूव दिस वन, x1 plus x2 plus x3 whole square divided by y1 plus y2 plus y3 is less than equal to x1 square by y1 plus x2 square by y2 plus x3 square by y3। ये है काफी मजेदार है, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है, नॉर्मली डिनोमिनेटर को हम लोग स्प्लिट नहीं कर सकते, नीचे जो डिनोमिनेटर उसको स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये कर देता है। ये ऊपर का भी ब्रैकेट को खोल दिया, x स्क्वायर बाई y1, देखो ये क्या मजा है। कभी ऐसा लगे कि इस टाइप का खोलना चाहिए तो सी एस इनइक्वालिटी का एंजल फॉर्म, ठीक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि y1 y2 y3 पॉजिटिव होना चाहिए, सिर्फ y1 y2 इस फॉर्म के लिए, तभी पॉसिबल होगा, ठीक है। अब तुम्हें समझ में आ जाएगा क्यों पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव अगर है तब ये वाला पॉजिटिव है, तो इसको हम लोग फिलहाल उधर भेजते हैं, y1 प्लस y2 प्लस y3 और इनटू ये। लेकिन हम लोग ने अभी क्या पढ़ा था, ये वाला था a1 a2 प्लस b1 b2 इज a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर a2 b2 स्क्वायर। तो इसको कैसे कर पाए, तो इसको अगर हम ऐसे लिखे, और इसको भी हम लोग थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, ये इंटू ये हो जाएगा ना, यही तो था, a1 a2 b1 b2 c1 c2। और पॉजिटिव क्यों होना चाहिए, क्योंकि रूट y1 y2 y3 तो भी इन्वॉल्व कर रहे हो, तो ये पॉजिटिव होना पड़ेगा, और नहीं तो ये भी नेगेटिव हो सकता है, उधर जाने से इनइक्वालिटी घूम भी सकता था, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, और यहाँ पर भी हम लोग रूट y1 रूट y2 ये सब यूज कर रहे हैं, तो इसलिए भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये वाला फॉर्म भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसका सी एस इनइक्वालिटी के भाई है, उसी से आया हुआ है ये, लेकिन उसको थोड़ा छुपा के रखा है बोल के इसको हम लोग कहते हैं एंजल फॉर्म, ठीक है। इट्स ए कोरोलरी होता है ना, थ्योरम का कोरोलरी टाइप का। अच्छा है, देखो कभी हमको लगा कि ये स्प्लिट करना है, कितना सुंदर है, देखो हम लोग नॉर्मली स्प्लिट नहीं कर सकते, नॉर्मली कभी भी स्प्लिट नहीं कर सकते, और इसका क्या है, जैसे लग रहा है मतलब किसी ने इसका स्क्वायर खोल दिया, जैसे कोई बच्चा मिस्टेक करता है ना, इसका स्क्वायर मतलब x1 स्क्वायर, कोई बोल देगा सर इस पे x1 स्क्वायर बाय y1 x2 स्क्वायर बाय y2, एकदम छोटा बच्चा जिसको नहीं होता है, अरे उसी का गलती को हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं, হয় না, অনেকে ভুল করে করতে পারে না, যারা কিছু পারে না, মনে করে 6 7 8 এ অঙ্কই পারে না একদম,
ওরা কি করবে এটাকে x1 স্কয়ার বাই y1 x2 स्क्वायर बाय y2 x3 स्क्वायर बाय y3 लिख देगा ना, लिखेगा कि नहीं लिखेगा? देखो उन लोग से भी सीखना पड़ता है, वो भी करेक्ट है, वो मतलब वो थोड़ा लेवल ऊपर है बोल के पहले ही सीख लिया सी एस इनफिनिटी 7-8 में, इसलिए वहां पर ही लगा दिया। ठीक है, हालांकि इसका बहुत अच्छा अच्छा है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन में है, कैलकुलस में भी इसका है, लेकिन हम तो वहाँ जा नहीं सकते, वी हैव वेरी रिस्ट्रिक्टेड जोन दैट वन। अभी अगर मान लो एक क्वेश्चन में तुम लोग के लिए देता हूँ, कैन यू ट्राई दिस वन। मान लो गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया हुआ है, और तुमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है x प्लस 2y प्लस 3z, इसका मैक्स निकालो। एग्जाम्पल 3, क्या करेंगे, कुछ आइडिया आया? जैसे लिनियर से क्वाड है ये, इसका स्क्वायर x प्लस 2y प्लस, कैसा लग रहा है कि इसको से x निकाल दिया, y निकाल दिया, z निकाल दिया, तो इसका स्क्वायर कौन करेगा? इट्स लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर जो इसके साथ मल्टीप्लाइड है इनटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। हो गया, 9 4 13 1 14 14 है, तो अंडर रूट 14 इज द आंसर, रूट 14। अच्छा अभी देखो, तुम लोग ने एक तो फेमस चीज तुमको पहले से मालूम नहीं है, अभी ये भी हम लोग इससे प्रूव कर सकते हैं। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? ये तो करा होगा ट्रिगोनोमेट्री में, काफी इंपॉर्टेंट था। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का रेंज क्या था? मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को दूर से कहां से कहां रहता है ये? सुभानी अल्लाह। তোমরা টেস্ট दो যেতে গেছে সব অলরেডি, টেস্ট দিতে रहो घर में, फिक्स वाला टेस्ट বা ये टेस्ट পুরানতে বার করে টেস্ট দিতে থাকো। ये sin थीटा b cos थीटा ये कैसे चला जाता है? আর নাহলে যদি শর্ট নোটস বানাতে সেটা রিভাইজ করে লিখো যেতে গেছে। देखो तो अगर ये पता होता तो अभी इसका मजा मिलता। और मिनिमम वैल्यू भी था अंडर रूट माइनस स्क्वायर प्लस बी, ठीक है ना? ये तो चलो, अब इसको कैसे यूज करेंगे हम लोग? सी एस इनफिनिटी ए साइन थीटा बी कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। हमको लग रहा है कि साइन और कॉस अगर अलग हो जाता तो बहुत मजा आ जाता है, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो हमने कर दिया, हो ही गया। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा? इसका मैक्सिमम वैल्यू है प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर स्क्वायर, मिनिमम है माइनस अंडर रूट, क्योंकि इसका बीच में एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, मतलब क्या एक्स का वैल्यू -2 और 2 के बीच में है, इसका वैल्यू माइनस अंडर रूट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस अंडर रूट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक हो जाता है। वो हमने क्लास ए ट्रिगोनोमेट्री में कितना लंबा करके प्रूफ किया था, इससे डिवाइड किया था, एक को sin थीटा लिया था, दूसरा cos थीटा हुआ था, से sin sin b cos a cos b कुछ लगाया था, फिर हमने बोला था वो लेस देन 1 होगा, तो इसका वैल्यू, ठीक है? बहुत हो गया ज्ञान, इट्स टू मच ज्ञान, इतना ज्ञान में तो अपना कैसे जमेगा, ठीक है ना? ओके, अभी ये वाला सवाल को हम लोग करते हैं, देन वी विल क्लोज, ठीक है, फॉर टुडे। Coming to this question 45, 45 में
ए प्लस बी इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ए प्लस 1/a होल स्क्वायर प्लस b प्लस 1/b होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 25/2। ठीक है, ये प्रूफ करना है अपने को, मतलब ये निकालना है। मान लो ये दिया नहीं है, यू टू फाइंड दिस वन। मान लो ये ऑप्शन में है, क्या कर सकते हैं हम लोग पहले एक चीज देख रहे हैं कि ये दोनों अगर कास्ट प्लस हो जाता है, ए प्लस बी हो जाता है, क्योंकि एलसीएम करने से भी ए प्लस बी जाता है, ए प्लस बी तो दिया हुआ था। अच्छा, उसको प्लस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो फिर सब अलग अलग कर दिया ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, अच्छा इसको तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग ना, ए इंटू ये ए बी प्लस 1/a इंटू 1/b। अब देखो तो इसको, इसके साथ इसको लेके आ गया, होता है ना ऐसे, स्प्लिट कौन कर देता है, सीएस इनइक्वालिटी स्प्लिट कर देता है, इंटू, अरे उसमें तो इंटू आ जाएगा ना, इसमें तो प्लस नहीं आएगा, इंटू आएगा ना, क्या आएगा, इंटू आएगा, तो उसमें नहीं होगा। अच्छा देखो, इस ये भी एक अप्रोच था, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, ये दोनों इंटू आ जाता है, इसका मिनिमम मैक्सिमम लेवल, लेकिन अपने को तो ये सब प्लस में चाहिए, तो ये नहीं होगा। तो फिर हम लोग क्या सोच सकते हैं इसको, अच्छा पहले हम लोग एएमजीएम से आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, बीच में कहीं लग गएगा। वैसे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों होल स्क्वायर है, तो ये वाला लेस देन इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये दोनों इंटू हो जाएगा, ये पूरा का स्क्वायर। सो दिस जो अपने को निकालना है, मान लो k है डिवाइडेड बाय 2 इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ क्या बन रहा है अपना, होल स्क्वायर और रूट कट जाएगा, दिस होल स्क्वायर एंड रूट विल कम डाउन। लेकिन हमने इसमें cs क्यों लगाया, अभी तो ये लग रहा है अपना ab प्लस a प्लस b ना, क्या बन रहा है, अगर हम इंटू करेंगे ab प्लस 1/ab, फिर क्या बनेगा a/b प्लस b/a। इसमें cs कैसे लगा है, cs क्या आगे, अच्छा नहीं बनेगा, इसको cs से बनाना होगा, सॉरी नहीं बन रहा है, ठीक है ना, इधर तो प्लस भी नहीं आ रहा, अपना जो चाहिए था ये सब नहीं बन रहा है, यहाँ स्क्वायर बाय स्क्वायर कुछ इस टाइप का बन रहा है, तो इससे भी नहीं बन रहा है। तो हम लोग इसको ऐसे करते हैं, cs में थोड़ा 1 इंटू ए प्लस 1/a होल स्क्वायर प्लस b 1 इंटू b प्लस 1/b होल स्क्वायर। अब अपने को क्या पता है, इसका स्क्वायर क्या है, अंडर रूट 1 1 है इधर, तो क्या हो जाएगा, ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू आप सब प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है ना, इसका स्क्वायर इन प्लस कैसे लिख दिया ये लोग, चलो स्क्वायर को ही छोड़ देते हैं, स्क्वायर को ही छोड़ देते हैं फिलहाल, ऐसे रखते हैं, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बनेगा ये, बुझले तो 1 1 আলাদা হয়ে গেল আর এটা এটা আলাদা, ঠিক है।
इसमें क्या था, इसका यहाँ बन रहा है, अच्छा इसलिए बनेगा, अब बनेगा। समझो मैंने क्या किया, अभी देखो अभी बन रही है a1 b1 a2 b2 is less than equal to a1 square plus a2 square b1 square plus b2 square। बना, बुझले तो ना, लिखते होगा नीचे a1 a2 b1 b2, तो a1 a2 square plus b1 square b2 square, ठीक है। तब यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है मेरा, देखो जो मैं चाहिए था a प्लस बी, और यहाँ a भी एलसीएम कर लिया a प्लस बी। उससे क्या होता है, क्योंकि ये अपने को a भी दिया हुआ है और ये 2 है, और ये तो जो चाहिए था उसका वही है जो अपने को चाहिए k, जिसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, ग्रेटर देन। अब देखो a प्लस बी अपने को 1 दिया हुआ है, तो 1 प्लस 1 बाई ए बी का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2k, मतलब 2k इससे ज़्यादा है। अब ध्यान दो, आप मतलब अपने को a भी चाहिए होगा। अभी ये चीज़ ध्यान दो कि अपने को क्या चाहिए, इसका k इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, k माने इधर चाहिए होगा, इसी को लिख दिया, इतना बड़ा कौन लिखेगा, k का ही चाहिए अपने को, ठीक है ना। अपने को क्या चाहिए, k का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, k इससे बड़ा तो होगा ही होगा। अभी देखो বলেছি আমি k এটার থেকে বড়, তাহলে माई जॉब विल बी इसका सबसे छोटा वैल्यू ले ले तो उससे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अपने को पता है k इससे तो बड़ा होना है, তো যার থেকে বড় হবে ওইটা দেখি কত নিচে নামতে পারে, তার মানে এটাও তখন নামতে নামতে হতো, তো ওইখান থেকে তো বড় হবেই হবে। तो इसको नीचे ना, इसको इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, ये कब नीचे नामेगा, इसमें इधर ये ए बी क्या होना चाहिए, ए बी मैक्सिमम होना चाहिए, ए बी जितना ज्यादा होगा उतना घट जाएगा, और ए बी का मैक्सिमम अपने को पता है, क्योंकि ए प्लस बी अगर दिया हुआ है और ए बी का मैक्सिमम वैल्यू हम ए एम जी एम से निकाल ले सकते हैं, सम दिया है प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू, ए प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी, तो ए बी का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है 1/4, ঠিক আছে। তো बन गया ये, अभी शेष खत्म। তারা এটা কত লাইনে করছে, বাট এটা সুন্দর করে একটু सीएस से बनाते तो कष्ट होता ছিল আমরা, बट एक बार बन गया देन इट इज इजी, और थोड़ा प्रैक्टिस करने से बन जाएगा, ठीक है। 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर मतलब क्या, 1/4, 1/4 वहां अंदर जाके 4 हो जाएगा, तो 25/2, तो k इज ग्रेटर देन 25/2। इसी को वो लोग कितना बड़ा करके किया, देखो बीच में कहीं सीएस वाला एकदम बीच में लास्ट में कहीं पे लगा है, तो मैंने भी साइड में इसको बहुत, मतलब मुझे देख के लगा कि इसमें तो सीएस का एक फील आ रहा है, लेकिन इसलिए भी देखना मैंने बहुत किया है, आजू बाजू में करके आ रहा है कि नहीं, मैं चेक कर रहा था। आई थिंक इट्स ओके, ठीक है। घर में ये सब लिखो, लिख लो पहले, ठीक है, और लिख के ज़्यादा क्वेश्चंस तो है नहीं, तो एएमजीएम ये सब क्या बोलते हैं, आरएसआर वाले एपी